सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मनदीप कौर ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ BA ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸਵੇਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਸਵੇਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮੋਰੀ ਜੀ ਹਨ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿਰਫ ਵਿਆਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਵੀ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸ਼ਮ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਜੀ ਦਮੋਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਲਬੁਰ ਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਵੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ 1173 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਜਮਾਲੁਦੀਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਾਲੁਦੀਨ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਮਸਊਦ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਮਸਊਦ ਗਾਂਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਉਮੀਆ ਖਾਤੂਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 3 ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਕੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1265 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 40 ਸ਼ਲੋਕ 2 ਸ਼ਬਦ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ। जिस आसन हम बैठे, जिस आसन हम बैठे ये जी रचना है इन्हां दी ਜਿਹੜੀ शब्द है जो कि राग आसा दे विच जिहड़ा लिखिया होया है श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज किया गया है। इस बारे में असीं जिहड़ी गलबात अज साडी इस क्लास दे विच करन जा रहे हैं। सो ये जिहड़ा शब्द है ये बहुत ही सुंदर शब्द है जिस दे विच शेख फरीद जी ने मनुख नूं यही समझाने की कोशिश की है कि तेरा जिहड़ा शरीर है वो नाशवान है। अज जिहड़ी जगह ते तू बैठा है उस जगह ते तेरे तो पहला बहुत लोग आके चले गए हैं। सो मनुख नूं रब की भगती वाल प्रेरित करते हुए उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ उदाहरण दिंदे हुए मनुख नूं समझाउण दी जिहड़ी कोशिश की है कि जिहड़ा तेरा जीवन है वह नाशवान है ते तैनूं ये गल जिहड़ी है वो चंगी तरह समझ लैनी चाहिए है ते समा रहिंदे हुए परमात्मा की जिहड़ी भगती है वो कर लैनी चाहिए है।
सो शुरू करते हैं जी असी शेखपुरी जी की लिखी हुई रचना जिस आसन हम बैठे। नाल दे नाल मैं शब्द दे श्लोक का या शब्द जिहड़ा पढ़ूंगी तो नाल दे नाल आपां उसकी प्रसंग सहित व्याख्या भी करांगे। सो जिस आसन हम बैठे, कहते जिस आसन हम बैठे एक जिहड़ा सूफी रहस्यवाद दे नाल संबंधित जिहड़ा शब्द है, जिस विच उन्होंने मनुखी शरीर की नाशवानता नूं जिहड़ा है दृढ़ किया करदिया होया मनुख नूं परमात्मा की भगती का उपदेश जिहड़ा है वो दिता है। कहते बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ए तन होसी खाक निमाणी गौर करे। सो निमाणी गौर जिहड़ी है, गौर मतलब जिहड़ी कबर की गल की है इत्थे। सो शेख फरीद जी जिहड़े हैं मनुखी शरीर की नाशवानता के बारे में गल करते हुए मनुख नूं कहते हैं कि मनुख तेरा शरीर जिहड़ा है वो नाशवान है, इसने एक दिन खत्म हो जाना है। सो तैनूं परमात्मा की भगत जिहड़ी है कर लेनी चाहिए है। सो पहला असीं इहदा प्रसंग करांगे कि एक काव टोटा जिहड़ा है शेख फरीद जी दे रचे हुए शब्द जिस आसन हम बैठे जो कि राग आसन चों लिया गया है, उस दे विच जिहड़ा साडी बुक जो साडी बुक शब्द सवेरा दे विच दर्ज है, जिसके संपादक डॉक्टर हरभजन सिंह होरी जी हैं, इस बुक दे विचों लिया गया है। इस विच फरीद जी ने मनुखी शरीर की नाशवानता नूं दसदे हुए मनुख नूं परमात्मा की भगती वल प्रेरित करने की कोशिश की है। सो शेख फरीद जी कहते हैं कि ये मनुख बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ये प्यारे मनुख तेनू रब दे जिहड़े चरणों नाल जुड़ जाना चाहिए है, तेन परमात्मा की भगती जिहड़ी है कर लैनी चाहिए है। बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, तेन परमात्मा के घर नाल ये प्यारे मनुख तेन परमात्मा के दर नाल जुड़ जाना चाहिए है, उसकी भगती कर लैनी चाहिए है। क्यों? क्योंकि तेन पता है कि तेरा शरीर नाशवान है, इसने एक दिन नाश हो जाना है। तो जिहड़ा तेरा जिहड़ा मनुखी जन्म है वो तेन सिर्फ तो सिर्फ परमात्मा की भगती वाल प्रेरित करने ही मिला है। कहते वो ये तन उसी खाक निमाणी गौर करे, ये मनुख तेरे एक दिन शरीर ने नाश हो जाना है, खत्म हो जाना है, तू इस जिहड़ी दुनिया नूं छड्ड के चला जाना है, तो तेरा अखीरला घर निमाणी कबर नहीं ही रह जाना है। सो इस करके तेन परमात्मा की भगती जिहड़ी है वो कर लैनी चाहिए है। आज मिलावा शेख फरीद टाकिम कुंजड़ियाँ मनो मचिदड़ियाँ। सो कहते ये मनुख तेनू जिहड़ा रब ने ये जन्म परमात्मा की भगती करने के लिए बख्शिश किया सी, पर तू जिहड़ा है इस जन्म नूं व्यर्थ गवा रहा है। तू जिहड़ा अपना जिहड़ा जीवन है, अपना जिहड़ा समा है वो संसारिक पदार्थों के वल लगा लिया है। तू जिहड़ा अपना मन है उसनूं संसारिक पदार्थों के वल ला लिया है, तो इस करके तू परमात्मा की भगती तो दूर होता जा रहा है। सो कहते आज मिलावा शेख फरीद टाकिम कुंजड़ियाँ मनो मचिदड़ियाँ। सो कहते तेनू परमात्मा के नाम का जिहड़ा परमात्मा नाम का जिहड़ा सिमरन करते हुए अपने जीवन को सफल करना चाहिए है। कहते तेनू परमात्मा का जिहड़ा मिलाप है वो तां ही प्राप्त हो सकेगा जेकर तू अपने मन के उपर काबू पा लेगा। तेरे मन नूं मचाउण वालियां भड़काउण वालियां जिहड़ियां ज्ञान इंद्रियां हन, जो तेरे मन नूं मचाउंदियां हन, तेरे दिमाग नूं पुठे पासे लाउंदियां हन, गलत पासे लैके जांदियां हन, सो तैनूं उन्हां दे उत्ते काबू कर लैना चाहिए है। जेकर तू उन्हां दे उत्ते काबू कर लवेगा तो तेरा परमात्मा नूं मिलना भी आसान जिहड़ा है वो हो सकता है। सो कहते ये मनुख तेनों तेरे मन नूं भड़काउण वालियां गलत पासे लाउण वालियां जिहड़ियां हन वो ज्ञान इंद्रियां हन। सो तैनूं इन्हां ज्ञान इंद्रियां दे उत्ते काबू पा लेना चाहिए है, तो परमात्मा का नाम जिहड़ा है उसनूं ध्याना चाहिए है। ये सब कुछ परमात्मा की मेहर नाल ही हो सकता है। सो तैनूं जिहड़ा अपना समा है वो परमात्मा की भगती में ला के सफल कर लेना चाहिए है। सो अगे चलते हाँ, कहते जे जाना मर जावना घूम ना आइए, जे जाना मर जाइए घूम ना आइए, झूठी दुनिया लग ना आप गवाइए, बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलिए। सो कहते ये मनुख जेकर तेनू इस गल का पता है कि तू एक दिन खत्म हो जाना है, तेरे शरीर ने जिहड़ा खत्म हो जाना है, मिट्टी दे विच मिल जाना है। सो फिर कहते तू जिहड़ा है जेकर तू ये जानता है कि तू एक दिन इथों चले जाना है, खत्म हो जाना है, तो वापस इस दुनिया दे विच नहीं आना,
फिर कहते तू इस झूठी दुनिया के पिछे लग के अपना आप क्यों गवा रहा है, तू अपने आप को इस झूठी दुनिया के पिछे लग के क्यों खजल कर रहा है, क्यों खुआर कर रहा है, क्यों गवा रहा है। सो तेनू सदा ही सच बोलना चाहिए है। बोलीए सच धर्म, झूठ ना बोलीए। तेनू धर्म के दसे रस्ते उत्ते चलना चाहिए है, कदे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए है, सच बोलना चाहिए है। तो जो रस्ता तेनों तेरे गुरु ने दसिया है वे मनुख तेनों उस रस्ते के उत्ते ही तुरना चाहिए है, क्योंकि गुरु का दसिया रस्ता हमेशा ही जिहड़ा है वो सही हुंदा है। तो साडा जिहड़ा मिलाप है वो परमात्मा के नाल कराउण दे विच सहायक भी सिद्ध हुंदा है। सो तेनों जिहड़ा कि परमात्मा का मिलाप हासिल करने के लिए गुरु के दसे रस्ते उत्ते चलना चाहिए है, हमेशा सच बोलना चाहिए है, कदे भी झूठ जिहड़ा है वो नहीं बोलना चाहिए। तो इस गल को हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए है कि तू इस संसार में एक दिन छड्ड के चले जाना है, इसलिए परमात्मा के नाम का सिमरन तेनों समा रहते हुए ही कर लेना चाहिए है। सो अगे चलते हैं जी, अगे कहते हैं शैल गेंदे पार गोरी मन मन धरिया, कहते कंचन वलने पासे कलवत चीरिया। सो इतने जी उदाहरण दी है जी वो दी है एक नौजवान मुंडिया की। सो कहते ये जोड़ा संसार समुद्र है, इसको पार करना बहुत औखा है। कहते समुद्र दे विच जिहड़ा कहते मनुखी आत्मा नूं भगती वाल प्रेरित करते हुए कहते हैं कि किस तरह मनुख तेनों हौसले के नाल इस मार्ग से चलना चाहिए है। कहते जिस तरह दरिया दे विच नौजवान बाकी नौजवान गभरुआं नूं दरिया पार करता वेख के एक कमजोर दिल की औरत भी दरिया को पार करने का हौसला फड़ लेती है, तो इस तरह वो दरिया को पार कर सकती है। सो कहते इस तरह ही संत जनां नूं जिहड़े संत लोग होंदे हैं, जिहड़े इस संसार समुद्र नूं पार करते हैं अपनी भगती के नाल, इस संसार समुद्र नूं पार करके जिहड़ा है अगे निकल जाते हैं। कहते उस तरह ही कहते जिहड़ा मनुख है उसनूं भी इन्हां संत जनां की संगत करनी चाहिए है, क्योंकि संत जनां की संगत जिहड़ी है वो करन दे नाल मनुख तू भी इस संसार समुद्र को पार कर सकेगा। सो तेनों संतां की संगत करनी चाहिए है, तो इस संसार नूं पार कर इस संसार रूपी समुद्र को पार करने वाला बन जाना चाहिए है। कहते जिहड़े मनुख जिहड़े मनुख सिर्फ तो सिर्फ धन कमाउण वाल ही लगे रहते हैं, जिन्हां दा इको एक काम हुंदा है वध तो वध जिहड़ा धन पदार्थ है उसनूं जोड़ना। जिहड़े अजिहे लोग हैं जो सिर्फ तो सिर्फ धन जोड़न वाल ही लगे रहते हैं, कहते फिर उन्होंने अखीर से बहुत ही दुखों का सामना करना पैंदा है। मरण तो बाद जदों उन्होंने कहते परमात्मा की दरगाह के विच लिआंदा जाता है तो उन्होंने फिर आरियां दे नाल चीरिया जाता है। सो इस करके कहते हैं मनुख तेनों समा रहते हुए भगती कर लेनी चाहिए है, तो इन्हां जिहड़े दुखों तो बचे रहना चाहिए है। सो अगे कहते शेख हयाती जग ना कोई थिर रेहा, शेख हयाती जग ना कोई थिर रेहा, जिस आसन हम बैठे कीते वेस गए। सो फिर कहते हैं कि चाहे कोई शेख होवे, चाहे कोई बहुत वड्डा राजा होवे, वो सदा लिए इस संसार के विच नहीं रह सकिया। मौत अटल है, वो हर एक नूं आउणी ही आउणी है। मरना सच ते जीवना झूठ है। कहते जिहड़ी मौत है वो सच है, वो हर एक नूं आके ही रवेगी, चाहे कोई शेख है, कोई बहुत वड्डा राजा है, कोई भी इस मौत तो बच नहीं सकिया। सो जिहड़े आसन ते अज असीं बैठे हाँ, जिहड़े आसन ते अज असीं खड़े हाँ, उस दे उत्ते साडे तो पहला बहुत लोग बैठ के जा चुके हैं। सो इसका मतलब कि शरीर जिहड़ा कि साडा नाशवान है, इसने एक दिन खत्म हो जाना है। सो इस करके मनुख तेनों समा रहते हुए परमात्मा के नाम का सिमरन जिहड़ा है वो कर लेना चाहिए है। सो अगे कहते कतक कुंजा चेत चित डर डराओ सावन बिजलियाँ, सियाले सोहदियाँ फिर गल पहाड़ियाँ, चले हर विचारा ले मनो, गढ़दियाँ छे मां टुरिंदियाँ हिक खिनो। सो अगली जी उदाहरण है वो दिंदे हुए शेख फरीद जी जिहड़े कहते हैं कि ये मनुख कतक दे महीने विच आउण वालियां गुंजां, कतक दे महीने विच आउण वालियां गुंजां, कतक गुंजां चेत चत डराओ सावण बिजलियाँ, कतक दे महीने विच आउण वालियां गुंजां, सौण दे महीने कहते कतक महीने विच आउण वालियां गुंजां, सौण दे महीने विच कड़कण वालियां बिजलियां जड़ियां हैं उन्होंने उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कतक के महीने जड़ियां हैं वो गुंजां आउंदियां हैं
ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਠਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲ ਬੁਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਥੋੜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮੀ ਪੁੱਛੇ ਆਸਮਾਂ ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਕਿੰਨੀ ਗਏ ਜਾਲਣ ਗੋਰਾ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀਆਂ ਸਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਨੇਕਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਔਖ ਸੌਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਮੀ ਪੁੱਛੇ ਆਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਕਿੰਨੀ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲਣ ਗੌਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਾਮੇ ਜੀਆਂ ਸਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਔਖ ਸੌਖ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗਲਤ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇਕ ਅਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ
नहीं रहना। सो इस करके मनुख तेनों प्रेरणा दी है कि तेनों समा देते हुए परमात्मा के नाम को ध्यान लेना चाहिए, उसकी जी भगती है वो कर लेनी चाहिए है। सो इस वक्-वक् जिहड़ियां गल्लां दी उदाहरण शेखपुरी जी ने बहुत ही सोहणे ढंग के नाल सानूं दित्ती है, जो कि दित्ती है जिस शब्द जिस आसन हम बैठे जिहड़ी जगह ते असीं बैठे हुए हाँ उस जगह ते साडे तो पहला बहुत लोग जिहड़े हन बैठ के चले गए हैं। सो ये सी जी साडी पहली रचना शेखपुरी जी का पहला शब्द जिस आसन हम बैठे, जिस दे विच पुरी जी ने बहुत ही सोहणे ढंग नाल नाशवानता की गल जिहड़ी है उसको दृढ़ करने के लिए ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। सो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ शेखपुरी जी ने अपनी ਜਿਹੜੀ रचना ਦੇ ਵਿੱਚ कि बोले शेख फरीद प्यारे, बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे ये तन होसी खाक निमाणी गौर करे। सो फरीद जी ने जरा एक गल की है कि ये मनुख कहते तेनों परमात्मा के नाम का सिमरन जोड़ा है वह समा कर लेना चाहिए है, परमात्मा की भगती करनी चाहिए है ता जो तेरा जो जीवन है वह सफल हो सके। कहते ये तन हो सके क्योंकि इस शरीर ने एक दिन नाश हो जाना है, मिट्टी के विच मिल जाना है, इसका अखीरला घर जी है निमाणी कबर रह जाएगी। शेखपुरी जी कहते हैं कि तेनों अपने मन को मचाउण वालियां जिहड़ियां ज्ञान इंद्रियां हैं उन्होंने काबू पा लेना चाहिए है। जेकर तेनों पता है कि तू एक बार मर जाना है वापस नहीं आना तो तेनों झूठी दुनिया के मगर लग के अपने अपना आप गवाना नहीं चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए है, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो जी रस्ता सानू गुरु दसदा है उस रस्ते के उत्ते ही हमेशा सानू चलते रहना चाहिए है। कहते संसार समुद्र के विच संत जनां नूं पार लंघदा देख के, वैसे तो दरिया की गल की है कि जिहड़ा दरिया है उस शहर जवान नौजवानों को पार लंघते देख के एक कमजोर औरत की स्त्री भी इसको पार करने का हौसला कर बैठती है। सो इस तरह ही संत जनां की संगत के विच मनुख जिहड़ा है वो तर सकता है, संत जनां की संगत के विच मनुख जिहड़ा है बैठ के अपने जीवन को सुधार सकता है। फिर कहते शेख हयाती जगना कोई थिर रहा जिस आसन हम बैठे कीते वेश बैठ गए। सो कोई भी शेख होवे, कोई भी राजा होवे, कोई भी महाराजा होवे, सदा दिल इत्थे बैठा नहीं रहा है, जो भी आया है उसने एक ना एक दिन जाना ही है। सो कहते ये जी जगह पर अज असीं बैठे हाँ इस जगह साढ़े तो पहला कितने लोग बैठ के जा चुके हैं। सो फिर कत्तक के महीने की गल करते हैं कि कत्तक के पूजा आ जांदियां हन ते चेतर के महीने सौण जी है जंगलों को अग लग जाती है, सावण के महीने बिजलियां चमकदियां हन ते सियाला दे विच एक इस्त्री दियां बावां उसके पति के गल सौंदियां हन। सो चले चलण हार विचारा। सो कहते मनुख इस संसार जिहड़ा है इस तो एक दिन हर एक ने चले जाना है। चले कहते जिस तरह मनुखी शरीर की बनतर को पढ़न लई तां 6 महीने लगते हैं पर उसकी मौत आउंदियां एक पल का समा भी नहीं लगता। सो इस करके तेनों समा लेंदे हुए परमात्मा के नाम की भगत जी है वो कर लैनी चाहिए है कि तेरा जो जीवन है वो सफल हो सके। जिमी पूछी आसमां खेवड़ किन्नी गए। सो जमीन जी है वो आसमान बढ़ती है कि इतने बड़े बड़े आगू कहाने वाले लोग जड़े सन वो कितने चले गए हाँ कहते कितने भी दिखाई नहीं दे रहे। जालण गौरा फिर कहते जो उन्होंने जी की हुई गलत काम है उन्होंने सज़ा जी है उन्होंने आत्मा को भुगतनी पवेगी। सो जी कहते इस तरह जियां नाल गुलामे कहते मनुखी शरीर तक कपड़ा गल सड़ जाते हैं पर औख सौख आत्मा ही सैनी पैंदी है। सो इस तरह सानू हमेशा ही नेक कर्म जोड़े हैं वो करने चाहिए हैं। सो ये जी थोड़ी बाबा फरीद जी की पहली रचना जी है जिस आसन हम बैठे। सो अज की जी साड़ी रचना उत्थे समाप्त होती है। सो हुण तुहाडा काम यही है कि तुसीं अपने घरां तो जी है तो ये जोड़े मैं करवा रही हाँ उन्होंने एक कॉपी लाओगे वो अपने नोट प्रिपेयर करोगे जिस प्रसंग सत व्याख्या नाल दी नाल करते जाओगे तो नाल दी नाल ही तुसीं जिहड़ा है श्लोक ते सार जिहड़ा है वो कविता का लिखते जाओगे तां जो तुहानूं एग्जाम समय ज़्यादा हैल्प जी है किसी तो ना लैनी पवे। सो अज की क्लास आपां इत्थे समाप्त करते हैं जी। धन्यवाद।